So friends, now we are ready for our session, the second half session, which is the pranayams. Today we will be again focusing on the breathing practices. Okay, तो आप सुखासन में बैठ जाइए और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए. Sit in your comfortable posture in सुखासन so that you can enjoy and always try to keep the spine straight. पीठ की हड्डी जब सीधी रहेगी तो आपका प्राण वायु अच्छी तरह से फ्लो होगा और आप प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे. रिलैक्स कीजिए. आंखों को बंद करते हुए आने वाली सांस और जाने वाली सांस के प्रवाह को देखना है. एंजॉय द ब्रेथ. Now follow the breathing pattern as the breath goes inhaled, air goes in and the exhaled air is coming out. Okay, so now let's be ready for the practices. We will again learn the basics of pranayams today. But before that, we need to do the two kriyas, Swashan Shuddhi and Kapalbhati. Swashan Shuddhi के लिए एक टॉवल सामने रखिए. राइट हैंड थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए. लेफ्ट से फोर्सफुली ब्रीद आउट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिर हाथ को नीचे रखना है, नाक को साफ करना. Now left nostril close, right nostril breathe out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाथ नीचे, नाक को साफ करें. Now breathe out with both the nostrils, the third part of Swashan Shuddhi. दोनों हाथों को द्रोण मुद्रा में रखेंगे और दोनों नथुनों से बाहर सांस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाथ नीचे और नाक को साफ करें. After this practice of Swashan Shuddhi, our nasal tract is very clear. So it is a very effective and helpful practice for removing all the clogs which are there in the nasal passage, and it helps the free flow of air towards the lungs. So it is very essential, like a warming up practice. You regularly do this Swashan Shuddhi. It also helps to enhance your Kapalbhati practice. So we all know Kapalbhati is a very nice hyperventilation technique which helps to remove all the toxins from our body, not only from the lungs but also from the blood circulation. इसीलिए रेगुलरली कपालभाति का अभ्यास करना है. यू ट्राई टू डू मिनिमम 500. नहीं होते हैं, आप बिगिनर है, आप 30 के कुछ राउंड्स करें, 100 तक पहुँचे. धीरे धीरे आप अवधि को या आपके आवर्तन को बढ़ाएं. Okay, so we are going for 100 strokes of Kapalbhati. Now here you have to remember the principle of fixing the chest and keeping the shoulders tight. So you are not moving the shoulders. Also at the same time, the exhalation is active, your inhalation is passive. मतलब आप जो सांस लेने की क्रिया कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी. उसके लिए जानबूझ के ऐसे करना नहीं है. It should be only इस exhalation only, प्रश्वास ही करते जाना है. आपका सांस लेने की क्रिया अपने आप ही सहज हो जाएगी. इसके लिए रेगुलर अभ्यास की जरूरत है. सो ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी यूज्ड टू दिस प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति. Hands in drone mudra. Fix the chest tightly and relax your facial muscles. Enjoy the practice of exhalation. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100। आंखों को बंद ही रहने दीजिए और अपने आसन को रिलीज करें। एंजॉय द इफेक्ट्स ऑफ कपालभाति फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। रिलैक्स योरसेल्फ। धीरे से आंखों को खोलें। Now friends, you have to remember all the principles of pranayams as we move on for the pranayams. इन दो क्रियाओं के बाद हम प्राणायाम्स के बेसिक्स पर फिर से जाएंगे। तो प्राणायाम की बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने अभी दो क्रिया की, उसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। प्राणायाम्स में हम प्राणों का आयाम करते हैं, प्राणों को डिसिप्लिन करते हैं। प्राण यानी हम एट द ग्रॉसर लेवल हम स्थूल मात्रा में प्राण मतलब यहाँ पे हम करते हैं हमारी सांसें, बट एक्चुअली प्राणा इज अ डीपर लेवल. At the subtle layer, it is the prana shakti. It is the energy that is holding us, that is keeping us alive. So now the grosser aspect उसका जो है वो है प्राण यानी सांसें. तो हम प्राणायाम में सांसों को सहज या नियमित करते हैं या अनुशासित करते हैं, उसे कह सकते हैं. तो जब हम योगी ब्रीदिंग करते हैं तो सांस लेना, सांस छोड़ना और सांस को रोकना, ये तीन चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है. सांस लेने की क्रिया पूरी तरह से होनी चाहिए, जिसे हम पूरक कहते हैं. तो जब हम सांस लेते हैं, शायद दोनों नथुनों से लो या एक नथुने से ले, सांस को पूरी तरह से छाती में और पेट में भर लेना है. सो इट शुड बी कंप्लीट फुलर ब्रीदिंग. चेस्ट में भर लिया, पेट को फुलाना है, तो उस तरह से सांस को पूरी तरह से भर लेना है. जब हम सांस को छोड़ते हैं, पेट भी अंदर जाएगा, चेस्ट भी अंदर जाएगा. इसे कहते हैं रेचक, सांस को बाहर निकालना. तो इस तरह से जब आप फुल ब्रीदिंग करते हो और फुल एक्सलेशन करते हो, तो आप लंग्स को यानी अपने फेफड़ों को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हो. मतलब अब हम जब नॉर्मल बैठे हैं इस तरह से, और जब आप सुन रहे हो मेरी बातें, तो हमारी सांसें 60 से 70 हमारी जो लंग्स है 60 से 70% तक काम करते हैं, प्रतिशत काम करते हैं. पर जब हम योगिक ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारे लंग्स का निचला हिस्सा भी पूरी तरह से यूज हो जा रहा है. मतलब इफ यू आर डूइंग द डीपर ब्रीदिंग, दैट इज व्हाई व्हाट इज हैपनिंग, द लंग्स आर बीइंग यूज्ड टू द मैक्सिमम. So whenever you do pranayams, see that you are not doing it at a superficial level. You understand the meaning, the concept of the pranayam and then do it. So प्राणों का आयाम करना, प्राणों को लेंगन करना, trying to hold the breath, trying to retain the breath in a proper way. Okay? तो हमने समझ लिया पूरक यानी सांस को पूरी तरह से भर लेना है पेट तक. रेचक यानी सांस को पूरी तरह से बाहर निकालना है. और कुंभक में हम सांस को रोक के रखते हैं. तो सांस को अंदर लेके रोक के रखना या सांस को बाहर निकाल के रोक के रखना. तो इसकी भी पहले हम अभ्यास करेंगे सिंपल. तो आपको देखना है, आई विल जस्ट शो यू एंड यू डू इट. नाउ यू विल जस्ट ब्रीद इन विद बोथ द नॉस्ट्रिल्स. हाथों को ध्यान मुद्रा में पूरक करें, फुला ब्रीदिंग करेंगे. सांसों की आवाज़ नहीं आती है इसमें, पर हम जानबूझ के सांस लेने की आवाज़ कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि सांस ले रहे हैं. इसमें छाती को फुलाया, पेट को फुलाया, ये सांस को पूरा तरह से हमने अंदर भरा है. ये हो गया पूरक. अब सांस को अंदर ही रोको, यहाँ से सांस को बाहर जाने मत. सांस को अंदर रोकेंगे यथाशक्ति से. मेंटेन 5 4 3 2 1. ओके. अब सांस को बाहर निकालें धीरे धीरे. सांस को निकालते समय पेट अंदर, चेस्ट अंदर. So you don't have to move your spine up and down. It should just be contraction, it should just be expansion. You don't have to move the spine. सांस लेते समय कोई और सांस छोड़ते समय कंधों को, ये सब करने की जरूरत नहीं है. Just observe the expansion of the chest and the abdomen. It should be very smooth. Okay, practice that. So now बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि हमें आदत उल्टी हो चुकी है. हम जब सांस भरते हैं तो पेट को अंदर लेते हैं और सांस चेस्ट को फुलाते हैं. ये गलत तरीका है, तो इसीलिए उसको अभी ही सुधारना है. एक्सपेंशन शुड बी कंप्लीट.
जैसे कि आप गुब्बारे में सांस को भर रहे हो, सपोजिंग मैंने आपको बलून दिया, एक गुब्बारा दिया, उसमें आपको सांस भरने को कहा तो वो पूरी तरह से फूल रहा है ना, तो वो सांस भरना मतलब पूरी तरह से उसको गुब्बारे को फुलाना। तो दिस इज कम्प्लीटली यू आर फिलिंग द एयर इनटू दी चेस्ट एंड दी एब्डोमेन। एंड जब हम सांस को निकालते हैं तो गुब्बारे से जैसे सांस बाहर आती है वैसे ही पेट भी अंदर जाता है और चेस्ट भी अंदर जाता है, रिमेंबर दैट। और हमने कुछ देर के लिए सांस को अंदर रोक के रखा, कुछ देर के लिए, तो दैट वाज 5 4 3 आई काउंटेड, दैट वाज द कुंभक फेस। तो कुंभक मतलब सांस को अंदर रोक के रखो, सांस को बाहर भी हम रोक के रखेंगे, उसे भी हम कहते हैं बाह्य कुंभक। तो आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक ये प्राणायाम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एंड दे हैव टू बी डन बिकॉज दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव योर लंग कैपेसिटी। एट द सेम टाइम इट इम्प्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ योर ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे लंग्स है, नाक से होते हुए जितने भी ऑर्गन्स हमारे फेफड़ों तक जाते हैं, जितने भी पार्ट्स जाते हैं, दे आर असिस्टिंग इन द ब्रीदिंग इन। सो हमारे चेस्ट मसल्स, हमारे बैक मसल्स, हमारे कंधे, हमारे रिब्स, हमारा डायफ्राम, हमारे गले के मसल्स, गले के अंदर जो ट्रैकिया है, फैरिंग्स है, नेजल नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, all these are the organs of respiration. So when you are doing that, you are improving the health of these organs. That is why you have to understand the concept of the scientific aspect of pranayams and then do it. So इसको हम combine करते हैं, आई योग में हम ट्रेडिशनल एस्पेक्ट भी लेते हैं और साइंटिफिक एस्पेक्ट को, दो जब हम कंबाइन करते हैं तो वी डिराइव द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ ऑल द प्राणायाम्स। बट अगर आपने बेसिक ही नहीं समझा है और आप सिंपली अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। आपने भले ही 100 तक काउंट किया, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एटलीस्ट 1% बेनिफिट ऑफ दैट। सो यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल एंड डू इट करेक्टली, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। सो लेट अस डू नाउ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू अगेन द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक एंड अगेन कुंभक। ओके, तो पहले हम पूरक करेंगे, सांस को भर लेंगे, पेट में सांस को भरा, चेस्ट में सांस को भरा, रोका, सांस को भर के हमने पूरक कर लिया है। अब हम सांस को अंदर यथाशक्ति से रोकेंगे, नहीं रोक सकते हैं तो उंगलियों से नाक को बंद करो और मेंटेन करो। 5 4 3 2 1। अब सांस को बाहर जाने दो, पेट अंदर जा रहा है, चेस्ट अंदर जा रहा है, पूरी सांस निकल गई। अब सांस को बाहर नहीं रोको, नई सांस नहीं लेना है, मेंटेन करें। 5 4 3 2 1। अब सांस को लेना है फिर से, चेस्ट एंड एब्डोमेन फुल। अब सांस को अंदर यथाशक्ति से रोके, नाक को बंद कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। सांस को छोड़ो, बाहर जाने दो सांस को धीरे धीरे। पेट अंदर जा रहा है, चेस्ट अंदर जा रहा है, पूरी सांस छोड़ दी है। सांस को बाहर ही रहने दो, चाहे तो नाक से बंद करें, सांस नहीं लेनी है। 5 4 3 2 1। सांस को ले। ओके, सो दिस प्रैक्टिस यू विल डू बिफोर यू डू दैट अनुलोम विलोम और बिफोर यू डू एनी अदर प्रैक्टिस, रिमेंबर दिस। सो इस वीडियो को पॉज करो, फिर से बार बार ये जो 2 बार अभी हमने प्रैक्टिस किया है अच्छी तरह से देखते हुए करें। फिर भी डाउट्स है तो मुझे व्हाट्सएप पे चैट करें, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल एंड देन यू डू इट। सो पूरा किया, हम जनरली बाह्य प्राणायाम नहीं करते, बाह्य कुंभक नहीं करते हैं, पर सांस को भरते हैं, सांस अंदर रोकते हैं, मेंटेन करते हैं, फिर सांस को छोड़ते हैं यानी रीचेक करते हैं, और कभी कभार हम रुकते हैं, नहीं तो फिर हम तुरंत ही बिना सांस को बाहर रोके हुए सेकेंड राउंड के लिए जाते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कीप ऑन आस्किंग मी। देखो, प्राणायाम को गलत करेंगे तो उसका इफेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पे होता है। द प्राणा विच फ्लोज हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अवर ब्रेन। सो ब्रेन नर्वस सिस्टम का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सो इफ़ यू आर नॉट प्रॉपरली चैनलाइजिंग द एयर इनटू द बॉडी, इट विल हार्म द नर्वस सिस्टम, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। इसीलिए प्राणायाम अगर नहीं समझे तो मत करो। सूर्य नमस्कार है या आसन गलत हुए तो भी चलता है, पर प्राणायाम को गलत तरीके से नहीं करना है, रिमेंबर दैट। So now I am hoping that you have understood the principle of pranayam. When you breathe in, it is fuller breathing. When you breathe out, it is fuller breathing out. Remember that. Okay? Relax कीजिए, आंखों को बंद करते हुए। आज के दिन हम इसी को समझते हुए अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे और इसी पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे।
Just revise in your mind what I just now said about the pranayams, how to do it, how to do the fuller yogic breathing. Next time we are going to learn the Vibhagiya breathing, where you will understand in more details how to do these pranayams, okay, in a more better way. So now let us apply this practice, whatever हमने अभी जो सीखा है, हर एक चीज का application होता है ना. Even in maths, when you used to learn the formula in algebra, a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab. So that principle is being applied. फिजिक्स में भी हम E is equal to mc square, हम क्या करते हैं, उस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं फिजिकल द फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. सो द फॉर्मूलाज आर बीइंग अप्लाइड एवरीवेयर. सिमिलरली ये जो फॉर्मूला हमने सीखा है अभी प्राणायाम का, इसका एप्लीकेशन हम करेंगे हर एक प्राणायाम में. तो हम रोज कौन सा प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका. भस्त्रिका में क्या करते हैं, हाथ ऊपर लेना, सांस को लेना छोटा. तो अब हमें पता है कि सांस लेते समय चेस्ट और पेट को फुलाना है, और सांस को छोड़ते समय जब हम हाथ को नीचे लेते हैं तो क्या करना है, चेस्ट को और पेट को अंदर लेना है. ओके, सो यू विल डू दैट प्रैक्टिस नाउ इन अ मोर एंड मोर इफेक्टिव मैनर. उस प्रिंसिपल को हमें अप्लाई करना है भस्त्रिका प्राणायाम. ओके, सो लेट अस सिट इन वज्रासन और सुखासन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें आप बैठे. ओके, नाउ फर्स्ट राउंड आई एम नॉट काउंटिंग फॉर यू बिकॉज यू विल बी सीइंग मी. देखो आप देखेंगे पेट कैसे फूल रहा है, पेट कैसे अंदर जा रहा है, चेस्ट कैसे फूल रहा है, चेस्ट कैसे अंदर जा रहा है. ओके, सो यू आर नॉट मूविंग द शोल्डर्स और द स्पाइन. This is the position of Vajrasan and this is the beginning position for Bhastrika Pranayam. We are applying the principle now. You have to do it correctly. Okay? Keep your eyes open and do. Start. Understood? So you understood expansion, contraction. Expansion, contraction. You could understood. You could see that. So breathing in में, breathing out में contract. So वो principle जो हमने सीखा है उसी को हम भस्त्रिका में apply करें. So now you understood it. Close your eyes. You have to do it in that manner. So now you understood. I will count for you. Okay, hands by the side. Start. In, out. In, 2. In, 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10. Got it? इस तरह से आपकी होना चाहिए. अगर आपको हाथ ऊपर लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, प्रैक्टिस बराबर से नहीं हो रहा है, तो आप सिंपली इस तरह से भी कर सकते हो. ताकि आपको कंफर्म है, आप अच्छी तरह से तैयार हो. यस, इस तरह से हमें सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है. रिलैक्स. सो ये हमने भस्त्रिका में अप्लाई किया. एवरी प्राणायाम यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल. रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. नाउ वी आर अप्लाइंग द कुंभक फेज ऑल्सो. याद है हमने क्या किया था, सांस को भरा था और फिर मैंने 5 4 3 2 1 वो क्या था, आपने कुंभक को रिटेन, अंदर सांस को रोका था, उसे होल्ड करके रखा था. तो हम उसको इस प्रैक्टिस को हम सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग प्राणायाम में अप्लाई करेंगे. चंद्र भेदन प्राणायाम, जिसमें हमें सिर्फ लेफ्ट से सांस लेना है, होल्ड करना है सांस को, और राइट से सांस को छोड़ना है. ओके, प्रिंसिपल विल बी देयर. एब्डोमेन चेस्ट फुलर ब्रीदिंग, सांस को रोकना और फिर ऑपोजिट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ना. सो लेट अस डू दैट नाउ, अप्लाइंग दैट प्रिंसिपल. तो आप सीधे बैठे हैं, लेफ्ट हैंड ध्यान में रखें, राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करो और हाथ को ढीला छोड़ो. अब सांस को भरे, पेट में भर लिया है, सीने में भर लिया, सांस को पूरी तरह से भरा. अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करो और सांस को अंदर ही रोक के रखिए. 5 4 3 2 1. ओके, अब राइट नॉस्ट्रल को खोले, लेफ्ट को नहीं, राइट को खोले. सांस बाहर, सांस बाहर जा रही है, पेट अंदर जा रहा है, चेस्ट अंदर जा रही है. पूरी सांस को छोड़ो. फिर से लेफ्ट राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, सांस को भरेंगे. पूरी सांस भर ली, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करो, सांस को अंदर ही रोक के रखो, आंतर को भर. 5 4 3 2 1. अब आपके राइट नॉस्ट्रल
को खोलेंगे, सांस बाहर, सांस बाहर जाते समय पेट अंदर, सीना अंदर। पूरी सांस को छोड़ो समय लेने के बाद। अगेन थर्ड राउंड। लेफ्ट नॉस्ट्रिल खोले, सांस भरे, पूरा भर दिया है। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके सांस अंदर रोके। 5 4 3 2 1। राइट नॉस्ट्रिल को खोलेंगे, सांस बाहर, धीरे धीरे सांस जाते जाते कहीं पेट अंदर जा रहा है, चेस्ट अंदर जा रहा है। एंड द लास्ट राउंड। राइट नॉस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीद इन, close both the nostrils, hold the breath inside the chest and the abdomen. Maintain. 5 4 3 2 1। open the right nostril, breathe out। धीरे धीरे सांस को निकालें, चेस्ट और पेट अंदर जा रहा है, पूरे पेट को अंदर जाने दीजिए, मतलब आपके पूरे लंग्स खाली हो रहे हैं। अंडरस्टूड? सो यू आर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ द कुंभक ऑल्सो। पूरा किया, सांस को भर लिया, सांस को अंदर रोका था, कुछ देर के लिए मेंटेन किया था, गुब्बारे में सांस को भर के रखा था, वैसे सांस को रोक के रखा था, वो कुंभक था। और फिर बाद में ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दिया। चंद्रवेदक प्राणायाम हमने अभी किया है, जिसमें हमने पूरक सीखा, कुंभक सीखा और रेचक सीखा। अप्लाइंग दैट प्रिंसिपल, ओके, रिलैक्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली व्हेन यू आर डूइंग इट स्लोली। इसमें नेक्स्ट प्रैक्टिस में, जो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीक में जब हम गुरुवार को ये करेंगे, तो उसका थर्ड कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि पूरक और कुंभक और रेचक का कुछ रेशियो होता है, तो वो रेशियो को हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। हमने आज क्या सीखा कि सांस को रोक के रखना, सांस को लेना, सांस को छोड़ना, उसमें हमारे शरीर के अंदर कैसे कैसे चेंजेस होते हैं वो समझा है। नाउ द ट्रेडिशनल एस्पेक्ट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीक। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट अस गो फॉर द रिलैक्सिंग प्राणायाम, भ्रामरी एंड ओमकार। फिर से भ्रामरी के लिए पूरी सांस भरेंगे सीने में और पेट में। इस तरह से मुद्रा लीजिए, पूरी सांस भर लीजिए, पेट में भरी है, चेस्ट में भरी, और सांस को छोड़ते समय नाक की ध्वनि, भ्रामरी, भौरे की गुंजन की आवाज। ब्रीदिंग आउट, so let the abdomen and the chest sink in. Again, breathe in full, last round. Keeping your eyes closed, both your hands in ध्यान मुद्रा। इसी प्रकार हम 3 ओमकार करते हैं आज के सत्र को समाप्त करने के लिए। अगेन, फुलर योगिक ब्रीदिंग, ब्रीद इन इनटू द एब्डोमेन एंड चेस्ट फुल। Enjoy the vibrations. Friends, now gently rub your palms. Massage your face. Again rub your palms. Move on your entire body. एक बार और हाथों को रब करें, अपने चेहरे पर रखें। हाथों को देखते देखते फिर आंखों को खोलें। धन्यवाद। So I hope you all have understood the principles of the pranayams today and have a lovely day. Thank you. Bye bye.